Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to your another important daily current affairs sessions in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. And my dear friends, as we all know that the examinations are basically lined up and that's why it's really high time that we should start with our current affairs preparation in a more comprehensive manner. And that's why today I am back with a very important session where we will be covering some important reports for the upcoming examinations point of view. But before that, we at EduTap has come up with a very important announcement for all the aspirants who are preparing for upcoming examinations. And let me tell you that we are providing you a huge drop on our prices of the different courses that we are offering to all of you. As you can see that we are providing up to 80% off on our various courses. For example, if you are preparing for the regulatory bodies exams, you can see that for RBI Grade B, IFSCA Grade A, combo courses, AD Grade A, NABARD Grade A and SEBI Grade A. So my dear friends, we are providing you flat 74% off on these particular courses. तो आपको क्या करना है, when you will be checking out the course और जब आप पेमेंट करेंगे उस टाइम पर you have to use the code GURU74 in order to avail these discounts. Okay, so ये जो कोड है दोस्तों वैलिड है आपका 6 सितंबर 2025 तक. दैट मीन्स आज तक ही ये पर्टिकुलर कोड वैलिड है. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस डिस्काउंट सेल का पूरा फायदा उठाएं. अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं गाइस, यू कैन डेफिनेटली परचेज द कोर्स राइट नाउ एज इट इज अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कुछ बाकी एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीएससी पीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एफसीआई एजी, यूपीएससी सीसैट या फिर जैब एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए भी हमारे पास फर्दर डिस्काउंट्स हैं ऑन आवर वेरियस कोर्सेज. ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू take the benefit of this particular opportunity. And now let's move ahead to the today's session. So my dear friends, before moving on to that, this is the schedule of all the current affair initiatives that we are providing to all of you. Like there is a government scheme session that we conduct every Monday, Wednesday and Friday at 10:30 a.m. और पर्सपेक्टिव 360 सीरीज सेशन इज देयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. राइट, एक बड़ा पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का ये कि सर कैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर करना है, क्या लिखना है, क्या एक एलिमेंट, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव आंसर. एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द Perspective 360 series session that we conduct every Monday, Wednesday, Friday at 5 p.m. Now, my dear friends, we are having a Finance 360 series session where we cover important finance current affairs and RBI notifications. This session is being conducted Tuesday, Thursday, Saturday at 10 a.m. And then the last but not the least, your CT 360 series session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs. And these sessions are conducted every Tuesday, Thursday, Saturday at 5 p.m. So please make sure that you are taking the screenshot of the schedule so that it is very much clear to all of you and you are following these sessions on a regular basis. Now guys, let me tell you that this is the topic that we are going to cover in the today's session, that is the UDI SC Plus report, a very important report, and then another comprehensive modular survey. So दोस्तों आज दोनों ही reports हमारी education के ऊपर है. So a very important part of the topic of our syllabus, right? So आज हम करेंगे इसको, but before that I told you जब आप next session में आएंगे तो आपको एक revision test होगा. So now first we will be conducting a small and a quick revision test so that I can ensure that yes, you are able to retain all the important aspects of the previous session that we have discussed. So here starts with the revision session. So the first question is on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. सो दोस्तों हमने देखा कि इस स्कीम के 11 इयर्स कंप्लीट हुए हैं. सो सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम, हाउ मेनी करोड़ अकाउंट्स, जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपन टिल नाउ. सो दोस्तों एज पर द रीसेंट डेटा 56 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ओपन टिल नाउ, जहां पर डिपॉजिट बैलेंस था वाज अराउंड रुपीज 2.68 लाख करोड़. नाउ गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what percentage of the accounts are open in the rural or the semi-urban areas. So out of total accounts, कितने percentage accounts आपके rural और semi-urban areas में खुले थे? That is 67%. And when it comes to the total proportion of the accounts which are opened by women out of the total, so basically 56% of the accounts were being opened by women only. ओके, सो ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रॉम द अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. सो द क्वेश्चन वाज ऑन द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसने पैन इंडिया इंटीग्रेशन को अचीव किया है. यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन था दैट विच स्टेट इज हैविंग एक्सेस टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विसेज एट 254. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट? दैट स्टेट इज, यस एब्सोल्युटली राइट, महाराष्ट्र. तो दोस्तों आपको भी इंश्योर करना है आप मेरे साथ अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहें. ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदि वाणी, जो कि एक ट्रांसलेटर, एआई पावर ट्रांसलेटर टूल है फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेजेस. सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज रिलीज दिस पर्टिकुलर बीटा वर्जन ऑफ आदि वाणी. नेक्स्ट पार्ट इज नारी 2025 रिपोर्ट ऑन द वुमेन सेफ्टी. इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था? इट वाज रिलीज बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the city which has topped the smart city index 2025? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से दिल्ली ने टॉप किया, बट अक्रॉस द वर्ल्ड what is the name of that city? So जब भी आप कोई रिपोर्ट कवर करते हैं, जो टॉप पर है उसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड हियर Zurich of Switzerland is the right answer. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो डैश टॉप द फुटबॉल 50 2025 report released by Brand Finance. What is the name of that team? It is Real Madrid. Real Madrid is the right answer. Next part, the former India all-rounder Dash has stepped down from his position as the president of BCCI. What is the name of this person? Roger Binny. So Roger Binny was earlier serving as the president of the BCCI, and now Rajiv Shukla has replaced it as the interim president. Now the last question, you have to tell me the name of the state which has topped the Khelo India Water Sports Festival medals tally. So this is the very first edition of the Khelo India Water Sports, and it was organized in Srinagar, Jammu and Kashmir. What is the state which has topped? It was Madhya Pradesh which has topped this particular state medals tally, right? I hope guys that all of you are able to answer these revision questions correctly in the comment section. राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ. एंड द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल दैट टुडे वी आर गोइंग टू कवर इज द UDISC Plus 2024-2025 report. So my dear friends, today we will discuss the Unified District Information System for Education Plus 2024-2025 report released by the Ministry of Education. So this report provides the critical insights into the India's school education landscape, covering across the different parameters. For example, it tells us about the enrollment patterns, dropout rates of the students, retention levels of the schools, progress towards the gender balance, and what is the teacher strength. So ये सभी parameters के across ये report हमें बताती है about the landscape of education. It gives us the insights on the status of school education in the states and union territories in our country. राइट. सो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं UDISC की, सो इसको 2012-13 के अंदर लॉन्च किया गया था, एंड इट वाज लॉन्च बाय कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बोथ एलिमेंट्री एंड द सेकेंडरी एजुकेशन. तो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों के ही इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंबाइन करके UDISC प्लस रिपोर्ट को रिलीज किया गया. ओके, सो टू एनेबल सीमलेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, UDISC Plus was developed by DOSCL, that is Department of School Education and Literacy, ने इसको डेवलप किया था फॉर द रेफरेंस ईयर 2018-19. और दोस्तों, जो UDISC Plus रिपोर्ट है, ये डेटा गैदर करती है फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड अदर स्कूल्स. तो यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो भी डेटा है स्कूल्स का अक्रॉस द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूल्स का डेटा गैदर किया जाता है. और उसके बाद इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स का ट्रेंड हमें पता चलता है कि वेयर एग्जैक्टली the school education of our country is going right now. Okay, but दोस्तों एक यहाँ स्लाइड चेंज हुआ. The slide change was that National Education Policy 2020 के रिलीज होने के बाद जो UDISC Plus 23-24 था, इन्होंने एक इंडिविजुअल स्टूडेंट डेटा पर फोकस करना शुरू किया. सो अर्लियर दे वर फोकसिंग ऑन द स्कूल्स, बट नाउ दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट डेटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और इसीलिए जो प्रेजेंट रिपोर्ट्स है उसको हम पिछले एडिशन वाली रिपोर्ट के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया. सबसे पहले 2012-13 के अंदर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इस रिपोर्ट को डेवलप किया था. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. सो बेसिकली NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशंस के बाद जो पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर का, उसको चेंज किया गया. एंड नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स foundational, that is pre-primary and primary, preparatory, that is partly primary, middle, that is upper primary, and secondary, that is secondary plus higher secondary. So ये नई क्लासिफिकेशन आई हमारे स्कूल इकोसिस्टम की. अब हम बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स की. दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया टीचर्स की स्ट्रेंथ. दोस्तों क्योंकि
जो एक स्कूल है वो टीचर से चलता है, राइट। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन कि जो टीचर्स का नंबर है हमारे कंट्री के अंदर, इट हैज क्रॉस्ड द 1 करोड़ मार्क इन द एकेडमिक ईयर 24-25. I am marking the star here. So what is that milestone which has been achieved in terms of teacher strength in our country? That is, we have crossed the 1 crore mark in terms of number of teachers in our country in the schools, right? And the teacher numbers have risen steadily since 2022-23, registering a 6.7% increase. So दोस्तों अगर हम last year के data की बात करें, so last एडिशन ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो उससे लेके अभी तक हमें कितना परसेंट इंक्रीज मिला है? 6.7% इंक्रीज इन द टीचर स्ट्रेंथ. और अगर हम यहाँ पर फीमेल टीचर्स की बात करते हैं सो इट वाज 54.2% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो कि पहले नंबर था 53.3% एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 54.2%. दोस्तों आप देखेंगे कि रिपोर्ट थोड़ी डेटा हैवी है, बट हमें इंश्योर करना है कि हम इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है. तो 1 करोड़ मार्क हमने क्रॉस किया टीचर्स में. अगर हम बात करते हैं फीमेल टीचर्स की, दिस नंबर हैज आल्सो इंक्रीज टू 54.2%. Now moving ahead to the next part, that is the pupil teacher ratio. दोस्तों pupil teacher ratio क्या है? So basically it is the number of students which are studying in the school per teacher. That means एक teacher कितने students को यहाँ पर पढ़ाता है. So basically you can see that it measures the number of students per teacher. So a lower pupil teacher ratio helps teachers giving more attention to each student. For example, आज मेरी क्लास में अगर 5 बच्चे हैं, so basically मैं उन 5 बच्चों को बहुत easily अपनी personal attention दे सकता हूं so that मैं properly उनको monitor कर पाऊं. But अगर वहीं मेरी क्लास के अंदर total 80 students हैं, तो मैं हर स्टूडेंट पर उतना बराबर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, राइट. सो दैट्स व्हाई इसीलिए लोअर पीपल टीचर रेशियो को यहाँ पर ज्यादा हम मानते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं पीपल टीचर रेशियो की दोस्तों, तो सभी लेवल्स पर जो पीपल टीचर रेशियो है, यू कैन सी दैट फाउंडेशनल लेवल पे इट वाज 10, प्रिपरेटरी लेवल पे इट वाज 13, मिडिल लेवल पे इट वाज 17 एंड सेकेंडरी लेवल पर इट वाज at 21. Let me tell you that national education policy के अकॉर्डिंग ये जो पीपल टू टीचर रेशियो है, ये आपकी 30:1 होनी चाहिए. दैट मीन्स एक टीचर पर 30 स्टूडेंट्स. बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम और ज्यादा बेटर स्टेट के अंदर है. सो दैट शोज दैट यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Okay, so you can see pupil teacher ratio in 24-25 at all levels was below the national education policy recommended maximum at 30:1. सो अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2024-2025 की, जो सिंगल टीचर स्कूल्स है दोस्तों, ऐसे काफी सारे स्कूल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जहां पर सिर्फ एक सिंगल टीचर है. सो डू वी रियली वांट कि एक स्कूल में बस एक ही टीचर है दोस्तों? नहीं. सो हर स्कूल में काफी टीचर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग देयर. सो ऐसे सिंगल टीचर स्कूल्स का नंबर भी डिक्रीज हुआ है और 6% तक का हमें फॉल यहाँ देखने को मिला. इसके अलावा जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स की नंबर भी यहाँ डिक्रीज हुई. अब जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स कौन से दोस्तों? जो स्कूल तो खुल गया, a school has been opened but no student has enrolled in that school, कोई स्टूडेंट जा ही नहीं रहा. तो ऐसे स्कूल्स में भी 38% डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन आवर कंट्री. इसके बाद आता है दोस्तों 2024-25 में हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द स्कूल. जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें वो स्कूल्स जो कि कंप्यूटर एक्सेस जहां पर है, सो ये नंबर 57.2% था एंड इट हैज इंक्रीज टू 64.7% इन 2024-2025. एंड व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स विद द इंटरनेट फैसिलिटी, इट वाज 53.9% इन 23-24 एंड इट हैज इंप्रूव्ड टू 63.5% इन 24-25. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग दी डिजिटल फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स. लाइक वहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं, वहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं टू द स्टूडेंट्स, राइट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो पीपल टीचर रेशियो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो दिया गया है उससे बेटर है, और सिंगल टीचर स्कूल्स, जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स भी हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं एज पर द यूडीआईसी प्लस रिपोर्ट. अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे ऑन द ड्रॉप आउट रेट्स. दोस्तों ड्रॉप आउट रेट बहुत ही खराब चीज है. दैट मीन्स एक स्टूडेंट ने बिना अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किए उस स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल से एडमिशन ही कैंसिल करा दिया अपना, ठीक है, आगे वो उसने पढ़ाई ही नहीं करी. सो ये ड्रॉप आउट रेट्स हैव सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इन द लास्ट ईयर compared to the 22-23 edition at the preparatory, middle and secondary level. आप देख सकते हैं दोस्तों, preparatory level पे अगर हम बात करें, पहले ये कितना था? 8.7% था.
then it decreased to 3.7% and then reduced to 2.3% only. In the middle level 8.1 से 5.2 पे आया, 5.2 से 3.5% पे आया आपका ड्रॉप आउट रेट। एंड सेकेंडरी एजुकेशन में आप 13.8 देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर है ड्रॉप आउट रेट, जिसको 10.9 पर लेकर आए और राइट नाउ इट इज एट 8.2%। तो ये फाइनल वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड याद रखिए कि ड्रॉप आउट रेट में भी हमें ड्रॉप आउट देखने को मिला है, दैट इट हैज आल्सो ड्रॉप्ड। बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज इंप्रूवमेंट इन द स्टूडेंट रिटेंशन। दोस्तों जब ड्रॉप आउट रेट यहाँ पर कम हुआ है, दैट मीन्स हम स्टूडेंट्स को रिटेन कर पाए हैं, रिटेन यहाँ पर कर पाए हैं। आप देख सकते हैं फाउंडेशनल लेवल पे पहले 92.1% रिटेंशन रेट था, वो बढ़ के 98% हुआ एंड नाउ इट इज 98.9%, which is highest across all the levels. And then in the preparatory stage it is 90.9% earlier and now it has improved to 92.4%. in the middle level 75.8% से बढ़ के 82.8% हुआ है और secondary level पे 44.1 से 47.2% हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंड याद रखिए। और यहाँ सबसे मैक्सिमम कहां पर है, फाउंडेशनल लेवल पे इट इज हाईएस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दोस्तों ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है? So it represents, basically it is a standard measure used in the education statistics, as it represents the total enrollment in a specific level of education। एक specific level of education पे total enrollment कितना हुआ to the total population of the official age group for that level। उस level के लिए total population कितनी है जो eligible है और total enrollment कितना हुआ। So this basically shows the gross enrollment ratio। ठीक है, so it is a specific level of enrollment, it is a total enrollment in a specific level of education regardless of the age as a percentage of the officially eligible population of that age group। so दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट बोथ द मिडिल एंड द सेकेंडरी लेवल। आप देखिए मिडिल लेवल पे 90% से इंक्रीज होकर 90.3% हो गया है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दोस्तों प्यूपिल टीचर रेशियो और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इस रिपोर्ट के। इसके बाद आता है सेकेंडरी। सो सेकेंडरी लेवल पर 67.6% से 68.5% भी यहाँ पर भी स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं गर्ल्स के एनरोलमेंट की, सो पहले क्या होता था कि गर्ल्स की एनरोलमेंट कम रहती थी, बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और बाकी और इनिशिएटिव्स के साथ क्या हुआ है, गर्ल्स की एनरोलमेंट भी स्कूल्स में बढ़ी है। इट हैज इंक्रीज टू 48.3% फ्रॉम 48.1% इन 23-24, which shows that now number of females who are taking admission to the schools is also increasing, right? So I hope that this part is clear to everyone। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 रिपोर्ट। सो दोस्तों यूडीएससी प्लस रिपोर्ट आई होप कि आप सभी को क्लियर है, सभी इंपॉर्टेंट डेटास को हमने कवर कर लिया है। सो अभी हमने बात किया था कि लैंडस्केप अक्रॉस द डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है स्कूल एजुकेशन का स्टेटस। अब हम बात करेंगे एक डिफरेंट रिपोर्ट की जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। So it was the part of 80th round of the national sample survey which focuses specifically on household expenditure for students। So दोस्तों जो बच्चे प्रेजेंटली स्कूल एजुकेशन में एनरोल्ड हैं उन पर खर्चा क्या हो रहा है, एक हाउस होल्ड का कितना एक्सपेंडिचर है, उस घर के कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और उसका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इस चीज का सर्वे किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। Right, let me tell you that this report was mentioned for the period of April to June 2025। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राइट, government schools account for 55.9% of the total enrollments in India with higher share in the rural areas। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में ज्यादा बच्चे देखने को मिले एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। यू कैन सी हियर, लाइक अगर हम यहाँ देखें तो ये है रूरल एरिया, 66% स्टूडेंट्स आर देयर and 30% of them are there in the urban areas which are in the government schools। अगर रूरल और अर्बन को कंबाइन किया जाए इट वाज 55.9% ओवरऑल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों फर्दर, 26.7% of the students in the government schools reported paying course fees। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स फीस पे कर रहे हैं, दैट इज 26.7%। अगर हम नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहां पर 95.7% बच्चे ऐसे हैं जो आपकी कोर्स फी को पे कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ऐसे टोटल कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि मेजरली स्कॉलरशिप पर डिपेंड हैं,
जिनकी एजुकेशन, सो दैट इज 1.2% ऑफ द स्टूडेंट्स। सो 1.2% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बताया कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है उनके एजुकेशन का। और दोस्तों इसके अलावा 95% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड कि वन ऑफ द हाउस होल्ड मेंबर्स in their home they are the primary source of funding for their school education। और ये कंसिस्टेंट है नंबर दोस्तों, बोथ इन रूरल एज वेल एज द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल 55.9%। सो गवर्नमेंट स्कूल में 55.9% आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर ज्यादा नंबर है रूरल एरियाज में एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप है, कितने स्टूडेंट्स अपने हाउस होल्ड मेंबर्स के अर्निंग्स के ऊपर जिनका सारा प्राइमरी फंडिंग डिपेंडेंट है फॉर द स्कूल एजुकेशन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर हम एक हाउस होल्ड का पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मान के चलें और वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाता है दोस्तों, सो बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही कम था। सो आप देख सकते हैं दैट हाउस होल्ड पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन was significantly lower, averaging 2863 compared to 25002 in the non-government schools। अगर हम सभी स्कूल टाइप्स की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर है दोस्तों इन द करंट एकेडमिक ईयर वो हमारा कोर्स फी पर है। दैट मीन सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है पेरेंट्स का, जब उनके चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू द स्कूल, दैट इज बेसिकली ऑन द कोर्स फीस, दैट वाज अराउंड 7111। इसके बाद जो खर्चा है आपका टेक्स्ट बुक्स पर होता है और स्टेशनरी पर होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें रूरल और अर्बन हाउसहोल्ड्स का, सो अर्बन हाउसहोल्ड्स आर पेइंग सिग्निफिकेंटली मोर अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। हर कैटेगरी में ज्यादा खर्चा आपके अर्बन हाउसहोल्ड्स का है एज कंपेयर टू द रूरल हाउसहोल्ड्स। सो दैट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये ट्रेंड आपको बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हम सभी ने देखा है आज का जो ट्रेंड है कि लोग चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल बट दे आर ऑल्सो टेकिंग द प्राइवेट कोचिंग। अब उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। 27% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कोचिंग को लिया है इन द एकेडमिक ईयर, जहां पर ज्यादा प्रेवलेंस कहां पर देखेगी, अर्बन एरियाज के अंदर। तो अर्बन एरियाज में स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल एंड ऑल्सो टू द प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर हम एवरेज एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर देखें ऑन द प्राइवेट कोचिंग पर स्टूडेंट, ये भी अर्बन एरियाज के अंदर हाई था एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। और ये जो गैप है दोस्तों, दिस इज बेसिकली वाइडनिंग द हायर एजुकेशन लेवल्स। ठीक है, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये लेवल आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि आपने देखा होगा लाइक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स in the urban areas who are going to the private coaching institutes for the different coaching, right? For example medical के लिए तो वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, राइट? अगर वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, राइट? सो बेसिकली दे आर गोइंग फॉर द IIT JEE। सो बेसिकली यू कैन सी दैट दैट्स हाउ द हायर एजुकेशन लेवल पर जाके ये जो गैप है आपका और ज्यादा वाइड हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को आज का जो सेशन है और जो दो रिपोर्ट्स हमने कवर की है आप सभी को एकदम क्लियर है। अब हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज के सेशन का, दैट इज द MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, द क्वेश्चन इज ऑन द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 24-25, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो बारी बारी चलेंगे एक एक स्टेटमेंट पर। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन, total number of teachers has crossed 1 crore mark. Is it right or wrong? Is it absolutely right? Second statement, जो pupil to teacher ratio था at the secondary level stands at 30, which is in line with the NEP's recommended maximum। So दोस्तों हमने देखा कि हर एक लेवल पर जो हमारा pupil to teacher ratio है वो कम ही है according to the levels of the NEP। So that means second statement आपकी is not right। Third statement is the zero enrollment schools witnessed a decline of nearly 38%, which indicates a positive trend। Absolutely right। So right answer will be option C, that is 1 and 3। और दोस्तों इसके अलावा I am having a homework question for all of you from the UDI SC Plus report, and you have to identify which of the following statements are correct as per the UDI SC Plus report which are mentioned here। और इसका आंसर देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, सो जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे दे विल बी द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द टुडे सेशन, एंड द स्टार परफॉर्मर ऑफ द प्रीवियस सेशन, फॉर दैट द क्वेश्चन वाज ऑन द नारी इंडेक्स, एंड हियर गाइस द पटना वाज रिटन इनकरेक्टली एज इट इज among the lower performing cities and not the high performing cities, so they were from the unsafe cities, so that's why the third statement was incorrect। Right answer was option E। So guys, you can see I'm having a long list of the star performers: Shovan, Princey, Gururaj, Muskan, Nicholas, Harish, Arnav, Mayank, Shanmukh,
अर्पिता, प्रीशियस, सेंट्रल एग्रीकल्चर, रोमा, सिद्धार्थ, जतिन, सभ्यम, शुभाश्री, गौतम, शुभांशु, दीक्षा, मनी, श्रेयांश, आयुष, प्रतीक, नागर, then निखिल, नागार्जुन, प्रणति, रोशु, Vaishnavi. So all these are the star performers from the previous session. So my dear friends, I'm really glad to see your names being here in this particular part. So my dear friends, that's all from the today's session, and I hope that आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा. And let me tell you a very important part, एंड दैट इज आज के सेशन के रिवीजन के लिए आपको चाहिए होगा आज का पीडीएफ, एंड यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. ठीक है. सो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन. आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और यू कैन शेयर योर क्वेरीज एट hello@edutap.co.in. So guys, that's all from the today's session. We will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.